बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट पे मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। ये हमारा सीरीज़ एक चल रहा है लॉ लिंक्स विद बैरिस्टर हारिस रमज़ान, और इस पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे गुफ्तगू कर रहा हूं जो लॉ से रिलेटेड है और जिसका एक इम्पैक्ट है सोशली लोगों के ऊपर। आज का टॉपिक एक रेपुटेशन है और ये चलता रहेगा, और वो है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी लीगल एजुकेशन और उसका इम्पैक्ट हमारे एडवोकेट्स, फ्यूचर एडवोकेट्स के ऊपर। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही मायनाज हस्ती जो हमें पेशावर से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इनका तारुफ इतना ज़्यादा और लंबा है कि मैं उनको शायद लफ्ज़ में नहीं समझ सकूंगा, इसलिए मैंने पूरा एक उनका इंट्रोडक्शन निकाला है। और इससे पहले मैं उनसे उनकी तरफ रब्ता करूँ, आई वुड लाइक टू रीड हिज इंट्रोडक्शन। इनका नाम है जी फैसल शहजाद साहब। मिस्टर फैसल शहजाद खान belongs to the district Sawabi, Khyber Pakhtunkhwa. He completed his early education from his home district, and after graduation, he joined Faculty of Law, University of Peshawar, and graduated in 2004. And soon he started his career as a practicing lawyer at District Bar Sawabi. And simultaneously, Mr. Khan completed his master's degree in the subject of political science from the University of Peshawar, followed by a master's degree in LLM from the same university. Mr. Khan got appointed as a lecturer in one of the most respectable colleges in the region, which is now a full-fledged university established in 1913 and maintaining its reputation of excellence ever since. With joining, he was entrusted with the important responsibility of establishing a department that could produce the best legal minds in the country, living up to the standards set forth by the college and maintained since 100 years. It was a huge task, but with persistent effort, their hard work paid off, and he managed to establish the department in limited time. He has materialized many of his own new ideas and made them work, and they have borne fruit with positive outcomes. The concept of legal clinics and induction of law in the university syllabus for the BS bachelor's degree program are the manifestation of some of his contributions. He climbed up the ladder quickly within the organization and has been holding senior management positions since 2010. Currently, as an assistant professor and head of the Department of Sharia and Law, Islamia College Peshawar, Mr. Khan leads a team of interdisciplinary professionals who are involved in conducting research in a number of fields, including gender based violence, tolerance through education, human rights, and civil sense. More broadly, he is an ardent supporter of women emancipation, rule of law, democracy, and restructuring the laws related to blasphemy in Pakistan, so that to curtail its misuse and to regulate its violators besides its punishment. फैसल साहब, एक बहुत एलैबोरेट आपका इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा भी मैं चल सकता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सीधा आई विल जंप टू द क्वेश्चन कि बीइंग अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल, मतलब आपकी अचीवमेंट्स हैं और आपने लॉ के अंदर काम किया, और ख़ास तौर पे आई एम मोर क्यूरियस to have your viewpoint coming in from KPK, because हम पंजाब में रह के तो बहुत डिस्कस करते हैं, पर अक्रॉस द प्रोविंस हमारी गुफ्तगू कम होती है। मुझे प्लीज ये बताइए कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेट्स इन कोर्ट्स ऑफ लॉ बहुत बुरी तरह डिटेरिएट हो चुका है, और ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में आ रही है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? हमारे ऑडियंस को प्लीज एलैबोरेट कीजिए। जी फैसल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम indebted Haris for such a lovely introduction and meeting you after such a long time. I was so excited actually. I'm looking forward to this session. The question that you asked me is very pertinent, more importantly in the recent times, especially when we keep in mind जो Supreme Court की judgment आई है recently, Sakib Nisar साहब की, on the importance and significance of the, or rather the improvement of the legal education in Pakistan. I'll begin by a small survey and then we can take it from there. 2017-18 में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की, and we as Pakistan was ranked at 105 out of 113 countries in the world for the access to justice and quality of legal education. जिसका मतलब ओपनली यही है कि we are down the ladder somewhere almost at the बहुत पीछे
के ममालिक में अभी तक हम है जब लीगल एजुकेशन की हम बात करते हैं, और वो क्यों है? ऑब्वियसली दैट नीड सम इंट्रोस्पेक्शन ऑन द लीगल एजुकेशन इन पाकिस्तान के अब तक क्या होता आ रहा है. नाउ ऑब्वियसली यू नो, and all our listeners, majority of those who are familiar with law and their legal practice would obviously be aware of the fact that the legal education in Pakistan is being regulated by the Pakistan Legal Practitioners and Bar Councils Act of 1973. उसके सब सेक्शन 13 के एंड 15 के नीचे एक लीगल एजुकेशन कमेटी होती है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है. वो पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन को अकॉर्डिंगली फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलेट करती है. जो लास्ट इनका सबसे सब्सटेंशियल एफर्ट आया है दैट वाज इन 2015 विद द नेम ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स 2015. ये मैं सब्सटेंशियल इसलिए कहता हूँ कि काफी अरसे बाद 1973 के बाद लीगल एजुकेशन में कुछ नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ नए डायमेंशन उसमें शामिल किए गए. हमें ऑब्वियसली मैंने और आपने तो 3 साल या उसी तरह का एलएलबी किया है अगर आपने फॉरेन से ना किया हो तो, या किया हो. लेकिन उससे पहले जो हमारे सीनियर्स हैं इवन उन्होंने 2 साल में भी एलएलबी किया है 1992 से पहले, और फिर उसके बाद 3 इयर्स में एलएलबी हो गया, और अब 2015 के बाद 5 इयर्स एलएलबी हो चुका है. अब हालांकि ये मैंने अपने डिपार्टमेंट में आई स्टार्टेड दिस 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम इन 2007 इन 2008. The Pakistan Bar Council and its Legal Education Committee actually gave us this task of starting a 5 years degree program on experimental basis. और वो experimental basis इतना कामयाब हुआ कि they then had to extend it to all the other law colleges, not only in my province but as well as in the rest of the country. और उसकी एक वजह भी थी क्योंकि law has always been taught in our country as more as a craft rather than as a science. But as we all know with the passage of time that it has assumed, rather it was, but now we have actually realized that it is no longer just a craft, but it's a science. उसमें study की, research की काफी ज्यादा गुंजाइश है, और खासकर उन ममालिक में पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ पे अभी भी जो लीगल थ्योरी है वो इवॉल्व हो रही है. वी हैव टू एक्चुअली लर्न एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम इट नाउ. तो वो इवोल्यूशन जो है उससे अब हम रिसेंटली ही गुजर रहे हैं. तो इसलिए जो थ्योरी की स्टडी है नो, यानी इससे इनकार नहीं है कि जो प्रैक्टिस की स्टडी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रैक्टिकल स्टडी है वो बेशक सिग्निफिकेंट है. लेकिन जहां तक लीगल थ्योरी का सवाल है, जब तक कि आप लीगल माइंड्स को उस पर ट्रेन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल दे विल देन हैव टू फेस इश्यूज इन द सोसाइटी. बहुत सारे मसाइल हैं, मैं एक एक करता अगर गिनता जाऊंगा तो ऑब्वियसली दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. लेकिन सम ऑफ दोस प्रॉब्लम्स दैट वी आर कन्फ्रंटेड विद, अगर आप इजाजत दें तो वो हम शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ. जी प्लीज प्लीज जरूर. हाँ, तो वो मुझे जो सबसे बड़ा मसला अभी तक लग रहा है वो जो पिछले 20-30 साल में हमारे मुल्क में जो मशरूम ग्रोथ ऑफ लॉ कॉलेजेस हुआ, और उससे कोई इतराज नहीं अगर लॉ कॉलेज ज्यादा बने, बल्कि दैट्स अ गुड साइन. मैं तो सोसाइटी के लिए इसको बेहतर समझता हूँ. ऑब्वियसली ज्यादा एम्पावर्ड लोग उससे निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब जो हम कहते हैं ना अंडर लूज रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. There were law colleges, private law colleges, but their main emphasis was not based on creating best legal minds or best legal practitioners. उनका जो focus था, it was more materialistic, और जो हम कहते हैं ना financial driven access था. उनका पैसे कमाने का ज्यादा होता था. उस वजह से हुआ ये कि लोगों ने डिग्रियां तो ली बहुत सारे, लेकिन उस डिग्रियों की जो कंटेंट है, जो वर्थ है, वो अनफॉर्चुनेटली उस पाए की नहीं थी जो कि किसी एलएलबी डिग्री होल्डर की होनी चाहिए या किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर की होनी चाहिए. सिमिलरली आपने भी ये बारहा सुना होगा, अभी तो खैर एनवायरनमेंट पिछले 10-15 साल से चेंज हो चुका है, लेकिन बिफोर दैट जिस किसी का स्टूडेंट कहीं पे एडमिशन नहीं होता था उसका लॉ कॉलेज में जरूर हो जाता था. और वन ऑफ द रीजन अनफॉर्चुनेटली वाज कि एक तो मेरिट नहीं होता था ज्यादातर, या फिर इंतहाई लो होता था, तो वो स्टूडेंट जो कि शायद कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाते थे वो इवेंचुअली दे विल एंड अप इन लॉ. एंड ऑब्वियसली सिंस
वो इस तरह के स्टूडेंट्स आ जाते थे जब वो फारिग होते थे तो उससे कॉलेज की ओवरऑल प्रोफेशन की क्वालिटी डिटीरिएट करती गई अनफॉर्चुनेटली। सिमिलरली पुअर टीचिंग क्वालिटी फैकल्टी भी थी, उसकी वजह है, उसकी तरफ मैं भी आता हूँ। Deficient research resources. Even I'm sitting in one of the celebrated universities in the province, but believe me, we are still not having access to majority of the well-known or decorated law journals, like for instance LexisNexis or जितने भी और हैं, तो उसको access नहीं है because they are either extremely expensive for a public sector university to have access to, or even for a private individual or a student, especially for a remote district like mine, to have access to. तो ये एक बहुत बड़ा मसला अभी तक है। एग्जामिनेशन सिस्टम ब्रोकन है। हाँ, जो सबसे बड़ा मसला जो कि शायद मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि आई वर्क इन जर्नल यूनिवर्सिटी व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट अ लॉ यूनिवर्सिटी। आपने नोट किया होगा कि हमारे मुल्क में ज्यादातर लॉ कॉलेजेस जो हैं वो जनरल यूनिवर्सिटीज के अंदर ही प्लेस किए गए हैं, और दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड लॉ यूनिवर्सिटीज। Probably, if I'm not wrong, there is only one law university in the whole of Pakistan, that is the Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Law University, जो सिंध में है। उसके अलावा वो भी प्रोविंशियल लॉ यूनिवर्सिटी है। एक फेडरल लॉ यूनिवर्सिटी की बातें आपको याद होगा पिछले गवर्नमेंट्स में चली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट हैव बीन मटेरियलाइज्ड। तो उससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम जर्नल यूनिवर्सिटी में होते हैं तो तमाम तरह अप्रोच जो हम हमारी तरफ होते हैं वो एकेडमिक ही होता है, चीजों को एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो उस तरीके से हम थ्राइव नहीं कर पाते जो लॉ स्कूल्स और लॉ कॉलेजेस होती हैं। तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट HEC एक्चुअली हैव टू comprehend, or especially with so many law colleges and law schools now. This was one of my ideas to my parent law school. Now is the time that we can start a law university, and all these public sector law colleges will be affiliated with that one law university. तो एक consistency आ जाएगी, हमें एक फील्ड में आगे स्टूडेंट्स और लॉ फैकल्टी जाएगी। सिमिलरली आपने एक और चीज जो मैंने पहले ज्यादा तौर पे नोट भी की और जिस पे मैं सोच भी रहा हूँ कि होपफुली हाई कोर्ट से रुजू किया जाए या सुप्रीम कोर्ट से, ताकि इस पे जरा सा डिस्कशन ओपन हो। Law teachers unfortunately are not regarded as legal practitioners in the real term of expression. We are regarded as law teachers in that sense. This is a counterproductive basically approach to me. अगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है और फिर शाम को या फिर उसी दिन जाके अस्पताल में प्रैक्टिस भी करता है, तो बेसिकली ही इज complementing both the experiences, both from academic to practical and from practical to academic. Beautifully said. हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है कि हमारा तो लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया जाता है और हमें तो कहा जाता है कि यू कैन नॉट प्रैक्टिस, वंस यू हैव टू क्विट द जॉब। इवन हम यहाँ तक गए हैं कि हमने पाकिस्तान बार काउंसिल से ये भी डिस्कस किया है कि वी कैन बी अ प्रो बोनो काइंड ऑफ, हम कमाते कुछ नहीं है, चले सही है, हम पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो प्रैक्टिकल जो स्किल है जो कि बहुत जरूरी है ताकि हम जाके अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके जा सके, वो अब उससे हमें महरूम ना रखे काइंडली। दिस इज बैड। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह थी। सिमिलरली एक और बात थी जो कि आपने मैंने तो खुद अपने लॉ कॉलेज में काफी ज्यादा नोट की कि जो सेलिब्रेटेड लॉयर्स होते थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो कि वेल नोन होते थे, जिनका इंटेलेक्चुअल आउटलुक भी होता था, तो वो कुछ ना कुछ वक्त पास्ट में निकाल लेते थे लॉ कॉलेजेस के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए किसी न किसी क्लास में आने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो इतना ज्यादा कमरसम हो चुका है उनका रूटीन के और बर्डन के, वो अब लॉ कॉलेजेस को वो वक्त नहीं दे पाते उस तरीके से। तो वो जो उनकी लर्निंग थी, जो उन्होंने सीखा था इतने सालों अपने प्रैक्टिस के, तो वो अब इतने सारे लॉ कॉलेज में ऑब्वियसली कुछ तो अभी भी करते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाते, वो टाइम नहीं दे पाते क्योंकि इट हैज बिकम ऑब्वियसली अ फुल टाइम प्रोफेशन नाउ। तो उससे भी काफी नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का। तो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आई थॉट इफ एड्रेस, तो होपफुली इसमें लीगल एजुकेशन की कोई बेहतरी हो सकती है। जी, अच्छा फैसल, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक इस्तिलाह जो नॉर्मली यूज होती है अमंगस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स, वो ये कि अ टाइम कम्स इन एवरी पर्सन्स लाइफ व्हेन दे हैव टू गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और ये आर्टिस्ट के लिए यूज होता है, ये थिंकर्स के लिए होता है, ये ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटर्स के लिए यूज होता है।
कि वो इवेंचुअली एक ब्रेक करते हैं और वापस आते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में लॉ यूनिवर्सिटीज और लॉ स्कूल्स वो जगह हैं कि जहाँ पे आप बैठ के वो सारे प्रॉब्लम्स और लेकुनास जो कि प्रोफेशन में एग्जिस्ट करते हैं उन पे डिलिबरेशंस कर सकते हैं। मुझे आप फैसल ये बताइए, क्योंकि आप माशाल्लाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हेल कर रहे हैं इस वक्त एंड यू लीडिंग दैट यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत तारीफ है एंड आई एम क्वाइट कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत एफर्ट करके उसमें एक इनवर्ड्स क्रिएट किया और एक माइंड डेवलपिंग एक आपका इम्पैक्ट रहा है बिकॉज ऑफ योर इंटरनेशनल एक्सपोजर्स एंड एवरीथिंग। द पॉइंट रिमेन्स कि इस वक्त एक मैसिव डिस्कनेक्ट है बिटवीन द बार एंड द बेंच। बार एक डिफरेंट टेंजेंट पे जा रहा है, बेंच टोटली डिफरेंट एंगल पे सोच रहा है। आपके ख्याल में इस पूरे प्रॉब्लम को हमारे जो लॉ इंस्टीट्यूट है वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, और आपके ख्याल में बार और बेंच को ऐसे क्या एफर्ट्स लेनी चाहिए जिसे जो आपने लकूनस थोड़े देर पहले आइडेंटिफाई किए हैं उनसे एक वे फॉरवर्ड निकाला जाए? जी फैसल। हाँ जी, ये तो एक बहुत ज़रूरी बात की तरफ आपने इशारा किया कि बार और बेंच के बीच जो डिफरेंस है वो भी अगर आप देखें तो वो मोस्टली एकेडमिक है। चीज़ों को लॉयर एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देता है, उसकी प्रैक्टिकल एक्सिजेंसीज होती हैं, लॉयर के फेवर में जाता है या उसके अगेंस्ट जाता है। लेकिन when you're talking of the bench, obviously you're talking of the content, you're talking of the laws, you're talking of the legal research. अब वो लीगल रिसर्च का जो अनफॉर्चुनेटली कल्चर है बड़े सिटीज में ऑब्वियसली होगा, जरूर अभी भी है, आई नो पीपल लाइक यू एंड अदर्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल स्टेशंस मैंने देखा है कि लोग इस प्रोफेशन को, लीगल प्रोफेशन को प्योरली प्रैक्टिकल ही लेते हैं और वो कोई रिसर्च नहीं करते। वो कोई बुक ना लिखते हैं ना रीड करते हैं, और ज्यादातर उनकी सारी जो चीजें होती हैं वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स के ही गिर्द घूमती रहती हैं। और मैंने तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो आई रियलाइज दैट माय मुंशी probably knows more than me after doing my LLB. It was only with the passage of time that I realized that नहीं, इसको तो कुछ प्रोसीजरल चीजों को पता है जो शायद मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं उन इस्तिलाहात से जरा सा टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर नहीं था लॉ स्कूल में, और फिर उसके बाद फेमिलियर हुआ तो इट बिकेम इजी। इसमें जो पाइवोटल रोल प्ले कर सकते हैं वो लॉ कॉलेजेस और लॉ स्कूल्स ही हैं, लेकिन वो अगर आप उनको वो जगह दे, वो स्पेस बीच में दे कि आप उनकी सिग्निफिकेंस को समझे। और जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, यू डोंट लुक इट टू, जब आपने किसी भी चीज पे रिसर्च कर दी होती है, मुझे मैं बहुत सारे अभी प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर्स को जाता हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से उन पर आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको एक्सपाउंड करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, या उनको ऑब्वियसली मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उन जजमेंट्स को रैशनलाइज करते हैं व्हेन इट कम्स टू द लीगल थ्योरी। लेकिन those works are not celebrated. आपने कहीं वो देखा नहीं होगा कि they are being showcased by the lawyers or by the judges, unfortunately. तो वो जो academic touch missing है वो आप लॉ स्कूल से ही लेके जा सकते हैं प्रैक्टिस तक। तो जब आपने दरवाजा ही बंद कर दिया लॉ प्रोफेसर्स के लिए कोर्ट में एंटर होने के लिए, या फिर जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए, आप मतलब इफ आई एम अ लॉ प्रोफेसर आई कैन नॉट बिकम अ जज, I cannot become a lawyer unless and until I'm not a professor. जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या रिजाइन कर लूंगा, that is possible. Otherwise not. Just to add to your point, the one of the former presidents of the International Court of Justice was an international law professor, Justice Rosalind Higgins. Yeah. She was an international law professor and she rose to the rank of the judge. So yeah, you're absolutely right, Faisal. We are heading towards the end of our today's session now. We want to keep it very crisp and small ताकि audience इसको digest करे। मैं आखिरी, हमारे पास 1-2 मिनट है, मैं फैसल आपसे ये चाहूंगा कि आप अगर इसको वाइंड अप करें विद द पॉइंट कि डू यू थिंक कि हमारा प्रॉब्लम ये हो चुका हुआ है, जिस तरह मैंने बार और बेंच की बात की थी, कि बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं हमारे लीगल प्रोफेशन की ग्रोथ में। फॉर इंस्टेंस, एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और जुडिशरी में भी कहीं पर भी एक कह लें कि एक क्लैरिटी नहीं है कि किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना, हर बंदा एक डिफरेंट एजेंट पे जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बेंच के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में लॉ प्रोफेसर्स और लॉ इंस्टीट्यूट्स को अगर इस एंगल में थोड़ा सा मूव किया जाए तो उनके लिखे हुए क्रिटिक्स या उनके पॉइंट्स, डोंट यू थिंक इन द टाइम्स टू कम उनका एक इम्पैक्ट आना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, और आप एक वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कीजिए।
हाँ, जरूर, बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही एक वे फॉरवर्ड है कि आप उनके क्रिटिक्स को, आप उनके राइटअप्स को, आप वो जो ओपिनियंस रखते हैं, आई मीन कोलैबोरेशन रखें, बार और बेंच के दरवाजे खुले रखें. Obviously we are allowed to invite judges from the courts to these universities and law schools, and then obviously these professors can also be invited as amicus curiae or even मुख्तलिफ चीज़ों पे आप इनको रख सकते हैं और कोर्ट के प्रोसीजर में उनको शामिल किया जा सकता है, उनसे हेल्प ली जा सकती है. बल्कि रिसेंटली मेरे ख्याल में 2 सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स को amicus curiae रखा गया है. तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा ओपन आपने रखनी होगी. देयर इज नो वे फॉरवर्ड. अगर आप एक डिस्कनेक्ट रखेंगे तो उस डिस्कनेक्ट का नुकसान हम इवेंचुअली प्रोफेशन को ही होगा और उन लॉ प्रैक्टिशनर्स को होगा जो अब आजकल कोर्ट्स में देख रहे हैं. और जो डिटीरिएटिंग स्टैंडर्ड है वो भी शायद इसी वजह से है कि वो कोई फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम से नहीं आए हैं और शायद उनको they were more into the practical aspect of the law rather than the theoretical. So let the students expound law. फैसल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला. मुझे पता है ड्यू टू कोविड आपके बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस चल रहे होते हैं. यू आर वेरी बिजी पर्सन, तो आपने टाइम निकाला. थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशंस इन द फ्यूचर एज वेल बिकॉज़ योर कमेंट्स वर वेरी वैल्यूएबल और आज मुझे भी एक सीखने का नया टेंजेंट मिला. So thank you once again, Faisal. Very kind. Thank you.